Assalamu alaikum and very good morning to everyone. I'm your OIS coordinator, Ms. Shazia Noreen. Today, once again, I'm over here to teach you science. Today is Monday, 7th of December, the last month of 2020. Oxford International School, GH Campus, Karachi, International Lower Secondary Science 1. Syllabus outline may we have two terms, first term and final term. And first term we have 3 chapters. In final terms, again we have 3 chapters. Chapter number 8, forces. We are starting on chapter number 8, forces. ये key points हैं कुछ मैं आपके साथ discuss कर रही हूँ. A force is a push or pull. A force can change the shape or motion of an object by making it start moving. G, we already explained and discussed about it. किसने join किया हमारे साथ? Okay. The size of a force can be measured using a force meter or spring balance. measure किया जा सकता है spring balance से. Several forces can act on an object, that is different forces act on an aeroplane flying in the air. ये हमने बहुत डिटेल से बहुत ही अच्छा टॉपिक क्लास में एक्सप्लेन किया था. रिव्यू फिर से दे देती हूँ, कोई मसला नहीं है. A force is a push or pull. Force का मतलब ये है किसी चीज को पुश करना और पुल करना. Think of some actions that we do in routine like pushing, pulling, pressing, lifting, etc. Even then we are drinking water, तो भी हम you are using our force. ठीक है. Force का एक फॉर्मूला है न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन. F force, M mass of an object, and acid relations. When you put on your socks, when you put on your socks, and when then you are lift up your bag, you are using your force. Yes, force can be weak or strong. Force weak bhi hoti hai, strong bhi hoti hai. The force of earthquakes, the forces of earthquakes and cyclones are strong enough to cause great damage. बहुत बड़ा damage जो होता है, तो इसी वजह से force can be measured by a force meter or spring balance. Balance किया जा सकता है. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. वो सब मैंने आपको रिव्यू दिया था एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैग्नेटिक फोर्स. ओके, हमारे पास क्वेश्चन है मींस के एहतियात जो करनी है. नेवर प्ले अ मैग्नेट नियर अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के पास मैग्नेट प्लेयर से मत खेलिए. अ टेलीविजन, अ वॉच और अ मैग्नेटिक कार्ड. The magnet may damage them, destroy or information inside them. Maybe magnet उस information को जो कि बहुत ही आपके कंप्यूटर में सेव है या आपके टीवी में सेव है उसे डिस्ट्रॉय कर. ठीक है. इससे मैग्नेटिक जो टॉयज हैं या मैग्नेट है उसे आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और इन चीजों से अवॉइड करना है, दूर रखना है. मैग्नेटिक फोर्स. Which objects will the magnet attract? मैग्नेट अट्रैक्ट कौन से ऑब्जेक्ट को करता है? Iron, cobalt and nickel as well and alloys composed of these materials which strongly magnet attract. मैग्नेट इन चीजों से बनी हुई चीजों को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, आपको ये वुड पीसेस भी दिखेंगे, पेंसिल, कील्स, स्टील रूलर और हैंगर, प्लास्टिक की चीजें भी दिखेंगी, सब तरह की दिखेंगी. इनमें से जी म्यूट कर दिया है मैंने. मैग्नेट जो है उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेगा जो कि आयरन की, निकल्स की और अलॉयज की बनी हुई हैं जिनमें मकनातीस यूज हुआ है. ठीक है. See the next slide. Magnetic force. Place a magnet near some objects to observe the interactions between the magnet and these objects. इन objects के दरमियान एक force है जिसकी वजह से मैग्नेट इन चीजों को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है, अट्रैक्ट करता है. अब आपने ऑब्जर्व क्या करना है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग. इन चीजों को आपने ऑब्जर्व करना है. Which objects are attracted to the magnet? कौन से ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को?
What materials are they made of? कौन से materials से बने होते हैं, कौन से materials use होते हैं इसमें? Does the magnet have to touch these objects to attract them? क्या magnet इन चीजों को टच करने से अट्रैक्ट करता है? Which objects are not attracted to the magnet? कौन से वो materials हैं जिन्हें के magnet attract नहीं करता? What materials are they made of? वो किस चीज के बने होते हैं जिन्हें अट्रैक्ट कर रहा है? वो मटीरियल किस चीज के बने हुए हैं और जिन्हें अट्रैक्ट कर रहा है वो किस चीज के बने हुए हैं? ये हमने देखना है, ठीक है? ये हमने ऑब्जर्व करना है. See the next slide. Magnetic force. Magnet can attract pull objects made of magnetic materials. Magnet, first of all, you should know, magnet उन्हीं materials को attract करता है जो कि magnet के बने थे, such as iron, steel, nickel and carbon. इसके बने हुए materials को magnet बहुत strongly attract करता है. Magnet do not attract non-magnetic materials. Magnet नहीं attract करता non-magnetic material को, such as copper, aluminum, plastic, wood और glass. वो कौन से materials है जिन्हें magnet attract नहीं करता? That are copper, aluminum, plastic, wood and glass. अब्दुल हाई ने ज्वाइन किया है हमें जी. The force which magnets exerts is called magnetic force. वो force जो कि magnet पे लगती है, ताकत बनती है, उसे magnetic force कहा जाता है. What we call magnetic force. A magnet does not need to touch a magnetic material to exert a force on it. Magnet को इस चीज की जरूरत नहीं होती कि उसके अंदर मैग्नेट लगा हो तो वो मैग्नेटिक फोर्स, अगर उसमें मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेट उसमें है, ऑटोमेटिकली इट विल अट्रैक्ट टू द मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करेगा. वी से दैट अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द डिस्टेंस. जाके अटैच करने से नहीं होगा, वो डिस्टेंस से भी करेगा क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा हुआ है ना. जरूरी नहीं है हम उस मैग्नेट किस चीज के साथ जाके लगाएंगे तो उसे अट्रैक्ट करेगा. ये मैग्नेटिक मटेरियल्स है, स्टील पड़ा हुआ है और ये मेरे पास एक मैग्नेट का टॉय है जिसमें मैग्नेट यूज हुआ हुआ है. हम ऐसे उसके पास लेके जाऊंगी, वो डिस्टेंस से भी उसे अट्रैक्ट करेगा. अब वो डिस्टेंस कितना है वो इस मैग्नेट में की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? We say that a magnetic force act at a distance. Magnetic force distance से भी attract करती है. Is magnetic force always a force of attraction? Is magnetic force always a force of attraction? क्या magnetic force of attraction होती है? Can it be push instead of a pull? क्या उसे push किया जा सकता है? यही सारी हमारी observations है जिन्हें हमने करना है. अब यहां देखिए मैग्नेटिक फोर्स. To find out, get two bar magnets and try to bring them close together. बार मैग्नेट लीजिए दो और उन्हें एक दूसरे के पास कीजिए. Their unlike poles, north pole and south pole, side by side. Are they magnetic attract to each other? ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल. Let's attract each other. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. Opposite poles attract each other. अब ये नॉर्थ के साथ साउथ को अट्रैक्ट किया. अब नॉर्थ के साथ हम साउथ, इसका साउथ ले आते. अब ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे. They repel each other. ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, नहीं अटैच होंगे. हम यू पकड़ के भी अटैच करेंगे तो they can't. वो नहीं हो सकता. नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट each other. Clear? Now stitch the poles of one magnet so that the like poles, north pole and south pole, are next to each other. Try it with magnets. North south attract each other. North south attract each other.
ये नॉर्थ एंड ये साउथ पोल। अब नॉर्थ नॉर्थ को कर दें तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा अट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। As you have found out, unlike poles of magnet attract each other. Unlike poles जो हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं. The force between two unlike poles of magnets is the magnetic force of attraction. Magnetic force of attraction होता है. Like poles of magnets repel, push away each other. जो सेम पोल्स हैं वो रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, आपस में जॉइंट नहीं होंगे. सिहान, just wait, give me 1 minute. Okay, yes. The force that exists between two like poles of magnets is the magnetic force of repulsion. अब the force between two like poles के जो है वो force of repulsion है, ठीक है, force of repulsion. Try it out, ये अब आपको करना है. Can magnetic force pass through a non-magnetic material? क्या मैग्नेटिक फोर्स नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से पास आउट हो जाती है? फाइंड आउट बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लीजिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, और जब एक्सपेरिमेंट कर लें तो फिर मुझे इसके रिजल्ट्स बताइएगा. सम पेपर क्लिप्स एंड थिन शीट्स of different types of non-magnetic materials as shown in a photograph. जैसा कि फोटोग्राफ में आपको दिया हुआ है, इस तरह से आपको एक थिक शीट लेनी है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेना है, कुछ पेपर क्लिप्स लेनी है और ये एक्सपेरिमेंट करना है. अब हमारे पास एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक आया है. ये क्या आया है हमारे पास? इब्राहिम और मानूर आए हैं, इन्हें हमने ज्वाइन करवा लिया जी. The ball falls to the ground instead of staying stationary in the air because there is the force acting on it. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं. फिर माइक किसी बच्चे का खुला है, इसे मैं वेटिंग में डालूंगी बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड. सॉरी, एक स्टेप मुझे पीछे जाना होगा. ओके, हमने एक बॉल लिया, बॉल को पुश किया ऊपर की तरफ. वो बॉल ने एयर में स्टे क्यों नहीं किया? वहीं क्यों नहीं ठहर गई वो बॉल? ठीक क्यों आई? फॉर एग्जाम्पल, माय गॉड, जी, आई हैव अ वॉलेट. मेरे पास ये वॉलेट है, इसे मैं ऊपर पुश कर, ये नीचे क्यों आ गया? इसने ऊपर स्टे क्यों नहीं किया? व्हाई इट्स नॉट स्टे इन द एयर? ऊपर भी तो खाली है ना, सब रुक सकता है, क्यों नहीं रुका? ये हम पढ़ेंगे. ये हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स. जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ग्रेविटी, फोर्स ग्रेविटी, कशिश सकल जो है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है. कशिश सकल हर चीज को अपनी तरफ खींचती है. Why does a ball fall to the ground when it is thrown upward? Why does not it stay in the air? हम बॉल को नहीं लेते, हम इसको दे लेते, ठीक है. ये देखिए, ये मैं छोड़ रही हूँ यहाँ से, इसे मैंने ऊपर फेंका, ये छोड़ रही है, नीचे क्यों गिरा? ये नीचे क्यों आ रहा है? कंसीडर इट लाइक अ बॉल. ये वॉलेट ले लीजिए, ये नीचे आ रहा है. The force is gravitational force or gravity. It's just because of the gravitational force. It's just because of the
ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किस वजह से हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आगे देखिए, see in the picture, the boy is flying and pushing upward the ball. बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, थ्रो किया है, और बॉल जो है वो वापस जमीन पर आ जाती है। Why does not it stay in the air? Just because of the gravitational force, force of gravity. फोर्स की कशिश शक्ल की वजह से जमीन की जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी हर चीज को सेंटर ऑफ द अर्थ अपनी तरफ खींचती है। जैसे हम कहते हैं ना, इसमें कितनी अट्रैक्शन है, इसको देखते साथ हमारा दिल करता है बस इसके पास चले जाना। इस फ्लावर में कितनी अट्रैक्शन है, ये मुझे खुद वहां को लेके जाता है। इस ड्रॉ में इतनी अट्रैक्शन है कि मैं इसका वेट करती हूँ। इसी तरह से ये हाई पीक की अट्रैक्शन जो है अर्थ में है, जिसे कहते हैं ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स is the force of attraction between two masses. The earth has a very large mass. दो मास के दरमियान ये ग्रेविटी होती है, एक तो जो ऊपर से नीचे आ रही है और ये अर्थ। It's gravitational force. It's going down just because of the gravitational force. जब तक मैंने इस पे ये फोर्स लगाई हुई है कि मैंने इसे पकड़ा हुआ अपने हाथ में रखा हुआ है, हैंग किया हुआ है, it's stay in the air, ये खला में स्टे किया हुआ। लेकिन जैसे ही मैं इसे यहाँ से छोड़ूंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अर्थ की जमीन की कशिश इसे अपनी तरफ खींच लेगी। There is therefore a strong force of attraction between the earth and any object near the surface of the earth. The earth's gravity pulls the object towards the center of the earth. अर्थ का जो सेंटर है वो हर ग्रेविटी उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। The effects this gravitational force is observed when objects in the air fall to the ground. इसी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जब तक कोई भी फ्रूट है वो हैंग रहता है, पकता रहता है या कच्चा होता है, अपने दरख्त पर ब्रांच के साथ लगा रहता है, जुड़ा रहता है, वो स्टे करता है। जैसे ही वो वहां से टूटता है तो वो फिर भी वहां क्यों नहीं रहता? इसलिए नहीं रहता कि ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और वो नीचे गिर जाता है। ये देखिए बड़ी प्यारी पिक्चर है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। The Earth's gravity pulls objects towards the center of the Earth. Center of the Earth जो है, center जो है Earth का, वो gravity है, बहुत strong gravity है जो कि हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। And just because of this gravity, we are able to walk on the Earth. हम जमीन पर चल सकते हैं। आपको पता है खला में ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी कम हो जाती है तभी वहां जाके चीजें उड़ती हैं, फ्लाई करती हैं। वहां ग्रेविटी नहीं है। जैसे 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 ऊंचाई पे जाते जाते डिस्टेंस ज्यादा होता जाता है, ग्रेविटी कम होती जाती है। और मून पे आपको पता है ना, चांद पे ग्रेविटी कितनी कम है कि लोग जो भी वहां पे पहला गया तो वो अपने साथ एयर सिलेंडर्स और सब कुछ लेके गया, ताकि उसके बावजूद दे फ्लाई, वो फ्लाई कर रहे थे। ठीक है, अर्थ पे ग्रेविटी नहीं, सॉरी मून पे ग्रेविटी नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स की एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल है, व्हेन यू जंप अप ऑन द अर्थ, जब आप जंप पे अर्थ करते हो तो ऑटोमेटिकली आप नीचे क्यों आ जाते हो, ऊपर क्यों नहीं हैंग हो जाते? डू दिस प्रैक्टिस, ये करके देखिएगा। जब भी आप जंप करते हो देन यू फॉल डाउन, आप वापस नीचे गिर जाते हो, गिर जाते हो। क्यों? It's just because of the gravity. Yes, you can change a little bit direction, थोड़ी बहुत आपकी डायरेक्शन जरूर चेंज होती है, बट आते आप ऑटोमेटिकली नीचे अर्थ पर है, जमीन पर। ये होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स पुल्स यू बैक, द फोर्स चेंज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन तो हमने पहले पता है कि चेंज कर देती है अर्थ, वो फोर्स। अब बॉल ऑन अ स्लोप, ये बॉल को छोड़िए अभी,
एक्टिव ऑब्जेक्ट, जी ये एक्सप्लेन हो गया। इसके की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स में मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स एक्सेप्टेड बाय मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स और अदर मैग्नेट्स। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्ट एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस से एक्ट करती है। मैग्नेट्स exerts force of attraction on magnetic materials such as iron, steel, nickel and cobalt. Like poles of magnets exerts force of repulsion on each other. Unlike poles of magnets, exerts force of attraction on each other. Gravitational force, gravity is a force of attraction between two mass. दो mass के दरमियान ये gravity होती है। Fill in the blanks हम कर चुके हैं। ये हमारे पास मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं आप लोगों के लिए रात को, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड यू विल डू दिस वर्क इन योर notebook. जी, is that clear? Yes. Any confusion? बाकी अभी Miss, fill in the blanks के तक काम हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ और आप लोगों के साथ बात करती हूँ। मिस अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? अगर ग्रेविटी ना होती तो हम सब फ्लाई कर रहे होते, सेम लाइक बर्ड्स। थैंक गॉड टू अल्लाह कि ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी की वजह से ही हम सिर्फ वॉक कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर ग्रेविटी ना हो। जी बोलिए। मिस कहते ना फिर परिंदे कैसे उड़ते हैं हवा में? जी 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 जी, देखिए ना, जब तक एरोप्लेन जो है उसे स्पेशल फोर्स मिलती रहती है, वो फ्लाई करता रहता है। और एक स्टेट ऐसी आती है जब ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचती है, वो नीचे गिर जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना होती तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, फिर हम क्या करते? टीचर देखिए, टीचर स्केल में टीचर देखिए ऊपर रुकना नहीं है, नीचे ही जाते जा रहा है। यस, ये बस बिकॉज ऑफ क्यों ऐसा हुआ? जी, ग्रेविटी। that's great, excellent. It's just because of the force gravity. ये किसकी वजह से हुआ है? ग्रेविटी ऑफ फोर्स, जमीन की कशिश की वजह से हुआ है। जमीन में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। टीचर जैसे टीचर मेरे पास दो मैग्नेट, अगर मैंने उनके उसके बाद एक मैग्नेट हुआ दूसरे के साथ चिपका दिया ना, वो फिर चिपक जाता है। और जमीन के नीचे भी एक मैग्नेट है जो हमें खींचता है नीचे। जी, अच्छा आप बताइए, आपके पास अभी मैग्नेट है? राइट नाउ डू यू हैव मैग्नेट? टीचर एक मिनट रुकें टीचर, मैं देख के आता हूँ। जल्दी से कम ऑन आई एम वेटिंग। टाइम इज गोइंग टू अप, टाइम खत्म होने जा रहा है, जल्दी से आ जाइए, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं छोटा सा। और किसी बच्चे के पास मैग्नेट नहीं है? किसी का दिल नहीं चाहता एक्सपेरिमेंट करने को? मेरा दिल ज्यादा है पर मैग्नेट नहीं है। कोई बात नहीं, मैग्नेट नहीं है तो हम मैग्नेट के बगैर भी कर लेंगे।